Hello guys, this is Learn to Grow, and in this one I'm going to talk about the KYC AML policy. But before starting anything, I have a very important appeal to you. Look, these videos I'm making so that you can have a good preparation for your internal promotion exam. And in no other way I am going to use it. Okay? And that same spirit also should be inculcated by you. You should not share it beyond your own device and beyond your own preparation. So I think we are pretty clear about that appeal, because if it is not followed by you, then I will be left with no other option but to stop this facility. So anyway, lots of talking done. Let's start with our preparation. So this policy I am talking about, this is KYC AML policy, and this is implemented by the operational and services department. Policy custodian is risk management department. Officer in charge is the general manager of the operation and services department, and the approval path is ORMC, यानी कि operational risk management committee. They propose it to the risk management subcommittee, which ultimately submits it to the board for approval of the policy. So just remember, implemented by the operational and services. So officer in charge is GM of that department, and it is custodian. Policy custodian is risk management department. Now moving on to the first page. So in India, the statutory framework, remember, this is CFT, that is combating the financing of terrorism. So this is CFT. And this also talks about anti-money laundering, AML. So these two are very important, make no mistake about it. There is also another important act, Aadhaar and Other Laws Amendment Act of 2019. So you need to remember these acts and rules ekdam clearly. Main two acts and rule is here, that is Prevention of Money Laundering Act of 2002 and Prevention of Money Laundering Rules of 2005. So do not confuse between these two. The act came in the year 2002 and the rule came in the year 2005. The rule talks about the maintenance of record, and RBI has the power to tell these banks regarding these things, and that power is conferred upon them by section 35A of the Banking Regulation Act 1949. And there is also section 18 of the Payment and Settlement System Act of 2007, which needs to be complied by this policy. Then there is Foreign Exchange Management Act of 1999, which is also very important. So during all this revision and study, you need to remember all these acts and rules. Otherwise, they must be fatal. RBI's master direction on KYC was issued on 28th November 2025. So these are all important as per, I think, that will be considered for the exam purpose. Next, we move on to the next page. There is an important definition of beneficial owner. यानी कि if there is more than one person associated and becomes a customer of an entity, then who will be the beneficial owner? Because for KYC purpose, this beneficial owner definition is very crucial. So you have to think about two important aspects. Number one, the controlling ownership interest. मतलब ownership का जो interest है वो कौन control कर रहा है, और कंट्रोल का मतलब यहाँ पे होता है कि जिसके पास राइट टू अपॉइंट द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स होता है, या तो फिर वो मैनेजमेंट या पॉलिसी डिसीजन को कंट्रोल कर रहा है बिकॉज ऑफ देयर शेयर होल्डिंग पावर और वोटिंग एग्रीमेंट. मतलब जिनके पास मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर को अपॉइंट करने का राइट है, वो पॉलिसी डिसीजंस को कंट्रोल कर सकता है, एंड बाय दैट वर्च्यू he or she will be called the beneficial owner of that particular entity. So if it is a company, then somebody who has more than 10% of interest in the share capital or profit, इन तीनों में जिसका ओनरशिप 10% से ज़्यादा है, उसको हम बेनिफिशियल ओनर बोलेंगे. Then there is partnership firm which is guided by partnership deed, और वहाँ पे भी 10% से ज़्यादा अगर किसी का कैपिटल और प्रॉफिट होता है तो उसको हम बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर. तो कंपनी में शेयर यानी कि ओनरशिप होता है,
और पार्टनरशिप फर्म है क्योंकि वहाँ पे गाइडेड बाय पार्टनरशिप डीड है, तो शेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। देन देर इज अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि किसी के पास अगर 15% से ज़्यादा प्रॉफिट, कैपिटल और प्रॉपर्टी होगा तो उसको बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा। कंपनी के पास शेयर है, पार्टनरशिप फर्म के पास वो नहीं है, और अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स उसके पास प्रॉपर्टी होता है। एंड देन इफ द कस्टमर इज अ ट्रस्ट, ओके, देन विथ 10% और मोर, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लुक एट दिस, इन द केस ऑफ कंपनी एंड केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इट इज स्ट्रिक्टली मोर देन 10% ऑफ शेयर, कैपिटल, प्रॉफिट और ओनरशिप जिस बारे में आप बात कर रहे हो। और अगर वो अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होगा तो इट शुड बी मोर देन 15%, ओके। सो दैट इज द चेंज यू नीड टू रिमेंबर। इफ इट इज अ ट्रस्ट देन इट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 10%। तो ये चीज आपको याद रखना है टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द questions that may come from here. Then there is certified copy that a customer comes with possessing OVD, officially valid document. You verify it from the original or from the portals. Then you write that it is verified from original. Once all the process is completed, it will be valid as a certified copy. Okay. If a person brings a certified copy, duly certified by any officer, then that will be deemed to be an OVD. But what is important is in case of non-resident Indians and persons of Indian origin, this is defined as per the Foreign Exchange Management Regulation of 2016. Another important you need to remember, this is 2016. So who can issue these certified copies? Authorized official of the overseas branches of scheduled commercial bank जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है। एनी ओवरसीज बैंक ब्रांच का ऑथोराइज्ड ऑफिसर जिसके साथ इंडियन बैंक्स का काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है। नोटरी पब्लिक अब्रॉड, कोर्ट मैजिस्ट्रेट, जज, इंडियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट जनरल, ये सब अथॉरिटी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट दे सकते हैं फॉर नॉन रेसिडेंट इंडियंस एंड फॉर पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन। देन देर इज सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री, द अथॉरिटी हियर इज सेरसाई, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। यहाँ पे कस्टमर का KYC रिकॉर्ड डिजिटली रिसीव, स्टोर, सेफगार्ड और रिट्रीव किया जाता है। डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, बैंक एक ऑफिसर को डेजिग्नेटेड डायरेक्टर नॉमिनेट करता है। दैट पर्सन नीड्स टू एंश्योर द ओवरऑल कंप्लायंस एज पर द KYC पॉलिसी इन आवर बैंक। दिस इज द जनरल मैनेजर ऑफ ऑपरेशंस एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट, ही इज द डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। डिजिटल KYC, पता ही चल रहा है आपको कि किसी का पोजीशन ऑफ आधार को लेके आपने उसका KYC वेरीफाई कर दिया इन डिजिटल मोड। नाउ डिजिटल सिग्नेचर, इट इज़ एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अगर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर एक वैलिड डिजिटल सिग्नेचर होगा तो एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रिजर्वेशन एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाई इंटरमीडिएट प्रोवाइडिंग डिजिटल लॉकर फैसिलिटीज, ये जो 2016 वाला रूल है उसके तहत उस डॉक्यूमेंट को इक्विवेलेंट ई डॉक्यूमेंट माना जाएगा। सो दैट इज़ वेरी क्रूशियल। ग्रुप, ये कॉन्सेप्ट आता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 द्वारा। नो योर क्लाइंट आइडेंटिफायर, ये दिया जाता है हर एक क्लाइंट को जिसका डेटा सेंट्रल KYC रजिस्ट्री, रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री में अपलोड किया गया है। ये एक यूनिक नंबर और कोड होता है। और CKYCR का पोर्टल होता है CKYCindia.in। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 3 तरीके का हो सकता है। इफ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस, देन इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 सेक्शन 2 के द्वारा इसका गवर्नेंस होता है। इफ इट इज़ रजिस्टर्ड एज ए ट्रस्ट, देन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के द्वारा इसका गवर्नेंस होता है। और स्टेट लेजिस्लेशन और कंपनी अगर होता है तो कंपनीज एक्ट 2013 आता है। सो दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार नंबर, वोटर आइडेंटिटी कार्ड जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है, जॉब कार्ड ऑफ नरेगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट के एक ऑफिसर के द्वारा ड्यूली साइंड किया जाता है, एंड द लेटर दैट द NPR इशूज़ जिसमें नाम और एड्रेस लिखा रहता है, ये सारे OVDs है। और यहाँ पे दूसरा एक
कॉन्सेप्ट भी है। अगर किसी कस्टमर का ओवीडी में उसका करंट एड्रेस नहीं दिया गया, लेकिन उसके पास एक यूटिलिटी बिल है, इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल वगैरह, वो 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है, तो आप उसको डीम्ड टू बी ओवीडी के हिसाब से ले सकते हो। एंड दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months, and within 3 months the customer needs to provide a current address proof. That is very important. तो यूटिलिटी बिल जो कि 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो, और उसको लेके 3 महीने तक आप उस कस्टमर को फैसिलिटीज़ दे सकते हो, लेकिन 3 महीने बाद उसका करंट एड्रेस आपको लेना ही पड़ेगा। नाउ एज पर एज फॉरेन नेशनल इज कंसर्न्ड, देन यू नीड टू टेक द डिटेल्स ऑफ एड्रेस जो कि वहाँ का जो गवर्नमेंट है वहाँ का एक पेपर में दिया गया है, और उसके साथ आपको एक और चीज़ लेना है, और वो है फॉरेन एम्बेसी और मिशन इन इंडिया जो है उसका एक लेटर जो कि एड्रेस प्रूफ के हिसाब में आप ले सकते हो। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही आपको लेना पड़ेगा। एंड फॉर मैरिज पर्पस, इफ समबडी गिव्स मैरिज सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पे एंड नहीं है, और गैजेट नोटिफिकेशन, तो इन दोनों में से किसी एक को लेके आप एड्रेस प्रूफ और चेंज इन नेम दोनों का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मान सकते हो। पर्सन का डेफिनेशन है, ये आपको पता ही होगा, नॉट दैट क्रूशियल। प्रिंसिपल ऑफिसर हमारे बैंक का एक ऑफिसर होता है जो FIUIND को डेटा देता है, तो उसको नॉमिनेट किया जाता है बैंक द्वारा, और हमारे बैंक के लिए वो होता है AGM ऑफ ऑपरेशनल एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट। अगर उस डिपार्टमेंट में AGM नहीं है तो चीफ मैनेजर। सो दैट्स इट। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, 2 चीज़ याद रखिए आप। अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन को भी आप सस्पिशियस बोल सकते हो, और इसका कोई वैल्यू दिया गया नहीं है, मतलब देर इज नो सच काइंड ऑफ मिनिमम वैल्यू। ओके। स्मॉल अकाउंट, इसका डेफिनेशन बाद में दिया जाएगा। ट्रांजैक्शन, ओपनिंग ऑफ अकाउंट इज ए ट्रांजैक्शन। सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स का एक्सेस अगर आप कर रहे हो तो वो भी एक ट्रांजैक्शन है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में आप जाते हो तो वो भी एक ट्रांजैक्शन है, और एक लीगल अरेंजमेंट में आप जाते हो तो वो भी एक ट्रांजैक्शन के द्वारा ही माना जाएगा। इम्पॉर्टेंट थिंग, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। किसी एक कंट्री का एजेंसीज दूसरे कंट्रीज के एजेंसीज के साथ टैक्स कंप्लायंस के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, एंड दैट इज डन थ्रू कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। और ये किसी लिए एग्जिस्ट करता है? दिस इज इन कंप्लायंस विद द आर्टिकल 6 ऑफ द कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस इन टैक्स मैटर्स। कन्वेंशन, किसके बारे में कन्वेंशन हुआ था? म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस इन टैक्स मैटर्स। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या होता है? एक बैंक ए दूसरे एक बैंक को सर्विस देता है, वो कैश मैनेजमेंट सर्विस भी हो सकता है। तो जो सर्विस देता है उसको करस्पॉन्डेंट बैंक बोलता है, और जो सर्विस लेता है उसको रिस्पॉन्डेंट बैंक बोलता है। वॉक इन कस्टमर मतलब जिसका अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप नहीं है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, फटका मीन्स फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, और ये इंडिया का कोई एक्ट नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक्ट है, जहाँ पे फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग इंडियन इंस्टीट्यूशंस, दे नीड टू रिपोर्ट अबाउट फाइनेंशियल अकाउंट्स जो कि US टैक्स पेयर द्वारा हेल्ड किया जाता है, या तो फिर कोई फॉरेन एंटिटीज़ के द्वारा हेल्ड किया जाता है, लेकिन उसमें US टैक्स पेयर्स का एक सब्सटेंशियल ओनरशिप इंटरेस्ट है। तो फटका एक एक्ट है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का है, और इंडिया प्रोवाइड करता है उसको एज पर द एग्रीमेंट, दैट इज इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड USA। तो ये IGA जो है ये इसीलिए किया गया था टू कंप्लाई टू द फटका। नॉन फेस टू फेस कस्टमर मतलब जो कस्टमर बिना बैंक में आए डिजिटल मोड में अपना अकाउंट खोल लिया है, सो दैट इज नॉन फेस टू फेस कस्टमर। नाउ रेगुलेटेड एंटिटीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द बैंक्स दैट यू कैन थिंक ऑफ, जिसको सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा लाइसेंस दिया गया है।
उन सारे इंस्टीट्यूट्स इस रेगुलेटेड एंटिटीज़ के दायरे में आता है। देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि नाबार्ड, सिडबी, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस है, एग्जिम बैंक, ये सारे आता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। ऑल नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर, सिस्टम पार्टिसिपेंट, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर्स, ऑल ऑथोराइज्ड पर्सन्स, ये सारे जो है ना ये रेगुलेटेड एंटिटीज़ के दायरे में आता है। शेल बैंक मतलब जिसका कोई फिजिकल प्रेजेंस उस कंट्री में नहीं रहता है जहाँ पे ये इनकॉर्पोरेटेड है एंड लाइसेंस्ड है। तो यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रांसफ़र हो रहा है तो बैंक को थोड़ा स्ट्रिक्टली ये मॉनिटर करना पड़ेगा। वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, आई एम गोइंग टू कम इन टू इट लेटर। वायर ट्रांसफ़र, इसमें सारे टर्म्स जो है वो को याद रखना है। नंबर 1, मान लीजिए एक कस्टमर, उसका एक बैंक में अकाउंट है B1 और वहाँ से दूसरे कस्टमर बेनिफिशियरी को वो B2 बैंक में जिसका अकाउंट है उसको फंड भेजना चाहते हैं। नाउ दिस B1 एंड B2 may be in the same country, then it will be called domestic wire transfer. If they are in different country, then it will be cross border wire transfer. Now C2 को बेनिफिशियरी बोला जाता है और B2 को बेनिफिशियरी रेगुलेटेड एंटिटी बोला जाता है। C1 को ऑर्डरिंग एंटिटी बोला जाता है और B1 को ऑर्डरिंग रेगुलेटेड एंटिटी बोला जाता है। अगर और इस वायर ट्रांसफ़र के दौरान दो चीज़ें ट्रांसफ़र होता है। नंबर 1 इज़ द फंड and number 2 is the message. Now if fund and message both are traveling together, then it is called serial payment. If they are traveling separately, then it is called cover payment. और ये B1 और B2 इन दोनों को एक साथ बोला जाता है intermediary RE. So this is very important for you to remember. यहाँ पे straight through processing का मतलब जहाँ पे कोई भी मैनुअल ट्रांजैक्शन नहीं है, और यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर यानी कि UTRN ये दिया जाता है हर एक पेमेंट का ID के हिसाब से। दिस इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स। ओके, वो एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर डिटरमाइन करता है। दैट्स इट। UCIC मतलब हर एक कस्टमर को एक यूनिक कस्टमर ID दिया जाता है और उसी को बोलते हैं यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड। FIUIND मतलब हर एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो होता है उसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा किसके पास? फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। और ये किस रिकमेंडेशंस के हिसाब से होता है? ये रिकमेंडेशन दिया जाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा। अल्टीमेटली देयर इज एन इंटरनेशनल गाइडलाइन रिगार्डिंग दैट एंड दैट इज एज पर द बेसिल कमिटी ऑन द बैंकिंग सुपरविजन BCBS on anti-money laundering and combating the financing of terrorism measures। इसके ऊपर जो बेसिल कमेटी का इशू किया गया ड्यू डिलिजेंस पेपर है और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो रिकमेंडेशन है उसके तहत हर एक बैंक को जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होता है उसको FIUIND को रिपोर्ट करना पड़ता है। कस्टमर KYC पॉलिसी, AML पॉलिसी का 4 पिलर से कस्टमर एक्सेप्टेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जस्ट रिमेंबर दिस CAP, CIP that is identification, acceptance, risk management and monitoring of transaction। तो ये चारों चीज़ें किए जाते हैं। बैंक को एक रिस्क बेस्ड अप्रोच लेना पड़ता है। द जनरल मैनेजर ऑफ ऑपरेशन एंड सर्विसेज विल कंस्टिट्यूट द सीनियर मैनेजमेंट हियर। बैंक का जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट है हेड ऑफिस में, उसके अंदर आता है इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफ द कंप्लायंस फंक्शन ऑफ बैंक्स पॉलिसी एंड प्रोसीजियर। तो बैंक का खुद का जो पॉलिसीज है उसका इवेल्युएशन और कंप्लायंस कौन करता है ना? कंप्लायंस डिपार्टमेंट। और KYC का जो कंप्लायंस होता है वो अल्टीमेटली रिपोर्ट कौन करता है? प्रिंसिपल ऑफिसर, जो कि AGM या तो फिर CM ऑफ द ऑपरेशन एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट होता है। और एज ए होल बैंक ऑल्सो हैज़ अ डेजिग्नेटेड डायरेक्टर फॉर दिस पर्पस and that is the general manager of the operation and services department। कॉन्करेंट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट का जो सिस्टम है हर एक क्वार्टर में वो एक
ऑडिट नोट देता है और कंप्लायंस का स्टेटस देता है और वो प्लेस किया जाता है ऑडिट कमिटी के सामने. सो एट द एंड ऑफ एवरी कैलेंडर क्वार्टर दिस प्रैक्टिस इज डन. This is very important. Decision making functions to determine the KYC compliance norms are not outsourced by the bank. Bank may take information or communication by using any outsourced agency, but the decision making regarding this compliance of KYC is solely on the bank. This is designated director, as I've already told. Now, these obligations are imposed under Chapter 4 of the PML Act and Rules. और ये जो प्रिंसिपल ऑफिसर है ये रिपोर्ट करता है डेजिग्नेटेड डायरेक्टर को. नाउ कमिंग इनटू द कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी. तो वहाँ पे बेनामी या फिर फिक्सिशियस नाम पे कोई अकाउंट खोला नहीं जाएगा. दिस इज स्ट्रिक्ट. यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट है, बैंक का जो इंफॉर्मेशन है सीडीडी प्रोसेस है को कंप्लाई करने के लिए आपको कस्टमर्स ड्यू डिलिजेंस मतलब कस्टमर्स का बहुत सारा इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है. लेकिन if the bank is suspicious that the money laundering or terrorist financing is going to happen, then CDD process will tip off the customer. So in that case, bank may not pursue the CDD process and instead file an STR straight away. So there is an exemption only if there is a suspicion. PAN को आपको verify करना है NSDL के site से. Now this is very important. You need to also keep in mind that under no circumstances this customer acceptance become the sole reason any financially or socially disadvantaged person you are denying him the banking or financial facilities. Okay, now risk management, this part is very important. Bank will adopt a risk based approach. तो तीन कैटेगरी है, एक है लो, एक है मीडियम, एक है हाई रिस्क. नाउ रिस्क कैटेगराइजेशन का बेसिस क्या होता है? कस्टमर्स आइडेंटिटी, सोशल एंड फिनेंशियल स्टेटस, उसका बिजनेस एक्टिविटी का नेचर क्या है, लोकेशन क्या है, जियोग्राफिकल रिस्क क्या है, ये बहुत सारा जो इंफॉर्मेशन है इनको इकट्ठा करके आपको कस्टमर्स को लो, मीडियम और हाई रिस्क कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ता है. नाउ कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, वेयर इज इट इम्पॉर्टेंट? टू कमेंस एन अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप विथ द कस्टमर. Now, this is very important in case you have doubt about the authenticity or adequacy of customer identification data. All you have to do is to send a letter of thanks to the introducer and letter of patronage to the customer in their recorded address by registered post. If the same written undelivered, transaction may be kept in abeyance. जिस दिन तक वो कस्टमर अपना रेसिडेंशियल एड्रेस का सेटिस्फैक्टरी एविडेंस नहीं दे पा रहा है उस दिन तक आप उस कस्टमर्स का अकाउंट में ट्रांजैक्शन स्टॉप कर सकते हो. दैट्स इट. यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स एज एजेंट, यानी कि आप अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हो और उसका वैल्यू अगर 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है देन आपको कस्टमर आइडेंटिफिकेशन करना एकदम मैंडेटरी है. और अगर एक नॉन अकाउंट बेस्ड कस्टमर, वॉक इन कस्टमर हो जहाँ पे 50,000 या फिर उससे ज़्यादा है इन ए सिंगल ट्रांजैक्शन और सेवरल कनेक्टेड ट्रांजैक्शन, देन आपको कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन करना एकदम इम्पॉर्टेंट है और मैंडेटरी है. अगर कोई कस्टमर अकाउंट खोलने के तुरंत बाद 50,000 या फिर उससे ज़्यादा अमाउंट का ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी. बैंक शैल इंश्योर दैट इंट्रोडक्शन इज नॉट टू बी सॉट while opening accounts. This is important. Biometric based KYC authentication including the Aadhaar face authentication can be done by the bank official or the business correspondents or the business facilitators. Explanation 4 is very important. Aadhaar number is not mandatory for the purpose of KYC. That is very very important. However, अगर वो कस्टमर किसी गवर्नमेंट बेनिफिट या सब्सिडी का सुविधा लेना चाहते हैं तो उसको आधार का पोजीशन एकदम कॉन्फर्म करना है.
पैन कार्ड आपको वेरीफाई करना है incometaxindia.gov.in से, और वोटर कार्ड आपको वेरीफाई करना है NVSP.in, यानी कि नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल. नाउ कमिंग इनटू द क्रूशियल डिजिटल केवाईसी प्रोसेस. ये एक OTP बेस्ड प्रोसेस है, यानी कि बैंक shall ensure that an authorized officer takes a live photograph of the customer and the same photograph is put in the customer application form. वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए? वहाँ पे एक वाटरमार्क इन रीडेबल फॉर्म होना चाहिए, जो कि एक CAF नंबर होगा. GPS का कोऑर्डिनेट होना चाहिए. ऑथोराइज्ड ऑफिशियल का नाम और उसका एम्प्लॉय कोड होना चाहिए. डेट होना चाहिए एंड टाइम स्टैम्प होना चाहिए. तो दिस इज ऑल यू नीड टू मेंशन ऑन द लाइव फोटोग्राफ ऑफ द कस्टमर. नाउ वो जो फोटो कस्टमर का होगा, इट मस्ट नॉट बी एनी प्रिंटेड और वीडियोग्राफ्ड फोटोग्राफ, मतलब वो ट्रू फोटो होना चाहिए. एंड उसका जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट कलर का होना चाहिए, और नो अदर पर्सन shall come into the frame while capturing the live photograph. Now उसके बाद authorized officer will fill the CAF, यानी कि customer application form. Now once the above mentioned process is completed, that means the live photograph of the customer, the live photograph of the OVD, and then the CAF is filled up by the authorized officer, then a one-time password message containing the text that please verify the details filled in form before sharing OTP, ये कस्टमर का खुद का मोबाइल नंबर में सेंड किया जाता है. अपॉन सक्सेसफुल वैलिडेशन द बैंक विल ट्रीट इट एज कस्टमर सिग्नेचर ऑन द CAF. कस्टमर का अगर खुद का मोबाइल नंबर नहीं रहता है तो कस्टमर किसी फैमिली मेम्बर, रिलेटिव और नोन पर्सन का मोबाइल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, और वो बात क्लियरली CAF में लिखित रहना चाहिए. ऑन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन द CAF शैल बी डिजिटली साइंड बाय द ऑथोराइज्ड ऑफिसर ऑफ द बैंक, who will take a print of the CAF, get signatures, thumb impression of the customer at an appropriate place and then scan it and upload the same in system. Now ये जो सारे प्रोसेस डिजिटल KYC के टाइम आपको करना पड़ता है, यहाँ पे ये जो ऑथोराइज्ड ऑफिशियल है वो एक बिजनेस करेस्पॉन्डेंट भी हो सकता है. बट दिस लास्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर शुड बी अ हार्ड कॉपी ऑफ दैट. Now another important process of KYC is आधार OTP based KYC. तो नाम से ही आपको पता चलता है कि ये भी एक नॉन फेस टू फेस मोड है, जहाँ पे आपका आधार क्रेडेंशियल को यूज़ किया जाता है. नाउ ये जो सारे अकाउंट्स है इसमें कुछ restrictions है. The aggregate balance of all the deposit accounts of a customer वो 1,00,000 रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता है at any point of time. अगर उन्होंने फुल कस्टमर ड्यू डिलीजेंस यानी कि फुल KYC कर लिया तो ये रेस्ट्रिक्शन हट जाएगा. Now, aggregate of all credits in a financial year in all the deposit accounts taken together should not exceed 2,00,000 rupees. तो बैलेंस किसी एक पॉइंट में 1,00,000 मैक्सिमम हो सकता है, और डिपॉजिट सारे मिला के 2,00,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Now, if the customer is given a loan, it must not be anything but a term loan. An aggregate amount of term loan sanctioned in a year shall not exceed rupees 60,000. अब मान लीजिए कि उस बोरोवर या फिर डिपॉजिटर का जो अकाउंट है आधार OTP बेस्ड KYC, वहाँ पे बैंक को 1 साल के अंदर CDD प्रोसीड्योर यानी कि कस्टमर ड्यू डिलीजेंस कंप्लीट करना पड़ता है. अगर 1 साल के अंदर बैंक वो नहीं कर पाते तो बैंक को सारे जो डिपॉजिट अकाउंट्स है उसको क्लोज करना पड़ता है, और सारे जो बोरोवल अकाउंट्स है उसमें फर्दर डेबिट अलाउ करने का परमिशन बैंक के पास नहीं होता है. तो दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द आधार OTP बेस्ड KYC. जस्ट रिमेंबर 10,000 मैक्सिमम बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम,
2 lakh, just remember 1 lakh balance at any point of time in all the deposit accounts taken together, 2 lakh total credits in a financial year in all the deposit accounts taken together, and 60,000 term loan in a year. और 1 साल मिलता है बैंक को इस अकाउंट को CDD प्रोसीड्योर के थ्रू कंप्लीट करने के लिए. अगर बैंक वो नहीं कर पाते तो सारे डिपॉजिट अकाउंट्स जो है उसको बंद करना पड़ता है, और सारे जो बोरोवल अकाउंट्स होता है उसमें डेबिट फ्रीज किया जाता है. नाउ देयर इज अनदर थिंग रिगार्डिंग दिस डिजिटल मोड, दैट इज वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस और VCIP. वो भी एक OTP बेस्ड मैकेनिज्म है, लेकिन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ चीज़ें बैंक को इंश्योर करना पड़ता है. एज पर द RBI गाइडलाइंस, बैंक को एक मिनिमम बेसलाइन साइबर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस फ्रेमवर्क रखना पड़ता है. ओके और ओनरशिप ऑफ डेटा, मतलब जो डेटा बैंक इस वीडियो CIP की दौरान, मतलब कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के दौरान लेते हैं, उसको बैंक को स्टोर करना है एक्सक्लूसिवली ओन्ड और लीज्ड सर्वर्स में. यानी कि अगर बैंक ने किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का हेल्प लिया भी है तो इस VCIP प्रोसेस कंप्लीट होने की तुरंत बाद वो सारे डेटा, वो सारे वीडियो उस थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के पास नहीं रहना चाहिए. वो सारे बैंक का खुद का सर्वर में रहना चाहिए. The video recording shall contain the GPS coordinate of the customer along with date and time stamp. Now इस VCIP का robustness कौन ठीक करेगा? यहाँ पे एक देखिए, जो VCIP का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसमें बहुत सारा टेस्ट किया जाता है. नंबर 1 इज vulnerability assessment, नंबर 2 इज penetration testing एंड नंबर 3 इज सिक्योरिटी ऑडिट. इसमें रोबस्टनेस को दिखा जाता है और एंड टू एंड एनक्रिप्शन कैपेबिलिटी को दिखा जाता है. मैंने बोलना भूल गया था शायद कि बैंक का जो VCIP इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो एकदम सिक्योर होगा और एंड टू एंड एनक्रिप्शन होगा. कस्टमर का जो डिवाइस है वो और बैंक का जो होस्ट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में पूरा एंड टू एंड एनक्रिप्शन रहना चाहिए. और ये सब कौन ऑडिट करेगा? Empaneled auditors of the Indian Computer Emergency Response Team CERT-IN ये सारे टेस्ट करेगा. It will be carried out periodically. Pause or disruption is creating multiple file. Then बैंक को एक fresh session initiate करना पड़ेगा. And all the interactions are real time and not pre-recorded. Suppose आधार सिक्योर QR कोड जनरेट किया गया है और आधार का जो डेटा है वो लाइव बेस में लिया गया. अब आपको उस आधार को ऑफलाइन वेरिफिकेशन करना है. नाउ लाइव VCIP के दौरान आपने QR कोड जनरेट कर दिया. इस QR कोड जनरेशन और ऑफिशियल ऑफलाइन वेरिफिकेशन, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज का गैप हो सकता है. क्लियर इमेज ऑफ पैन कार्ड और E-PAN शुड बी displayed during the video process, but in no case the use of printed copy or equivalent e-document that is not valid. So आपको ओरिजिनल जो पैन होता है या फिर ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होता है वही आपको दिखाना पड़ेगा ड्यूरिंग लाइव वीडियो. Now that is very important. The bank shall permit the assisted VCIP when it takes help of business correspondents to facilitate the process at only customer's end. Okay? तो BC एजेंट्स जो होता है वो कस्टमर एंड में जाके किसी एक कस्टमर को हेल्प कर सकते हैं. बट अल्टीमेटली द बैंक विल हैव द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग दिस CDD process. Now data management is very important. Bank shall store the entire data and recording of VCIP in a system or systems located in India. बाहर नहीं जाना चाहिए. It should be in a safe and secure manner and bears the date and timestamp that affords easy historical data search. Now there is important thing, the small accounts that already I've told. First of all, you need to remember that so the small accounts are opened as per the PML rules of 2005. So what are the important restrictions that you need to remember about this?
The aggregate of all credits in a financial year does not exceed rupees 1 lakh. So 1 लाख रुपीज से ज़्यादा all credits in a financial year नहीं होना चाहिए. The aggregate of all withdrawals and transfers in a month does not exceed rupees 10,000. That is very important. The balance at any point of time shall not exceed rupees 50,000. So 3 important things: credit 1 lakh, less than equals to, withdrawal less than equal to 10,000, and balance is less than equals to 50,000. So जो आधार एनेबल्ड अकाउंट था 12 मंथ्स के लिए जिसमें परमिट किया जाता था, उसमें कितना था? टोटल क्रेडिट हो सकता था 2 लाख रुपया उस 12 महीने के लिए. टोटल मतलब मैक्सिमम बैलेंस हो सकता था 1 लाख रुपीज़ फॉर दैट पीरियड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. एंड उसमें बोरवेल का एक फैसिलिटी भी था और वो था 60,000 रुपीज़ टर्म लोन टोटल पर ईयर. ओके, बट इन केस ऑफ स्मॉल अकाउंट्स द मैक्सिमम बैलेंस दैट मे बी देयर इज रुपीज़ 50,000. द मैक्सिमम withdrawal that can be permitted in aggregate in a month does not exceed rupees 10,000, and all the credits in a financial year does not exceed rupees 1 lakh. पे देखिए, individual is a prisoner in jail, they shall affix their signature and thumbprint in the presence of the OIC of the jail, and the said officer shall certify the same under his signature. The account shall remain operational only if the prisoner annually submits the proof of address. मतलब जो प्रिजनर है उसका जो एड्रेस प्रूफ वो 1 ईयर के लिए वैलिड है और वो दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल. दिस अकाउंट शैल रिमेन ऑपरेशनल इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. और 12 मंथ्स के अंदर वो कस्टमर को एक ओवीडी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. अगर उन्होंने को बोल दिया कि हाँ उन्होंने अप्लाई किया लेकिन अभी तक वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो यू कैन एक्सटेंड इट फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. ओके, एंड आफ्टर 24 मंथ्स द एंटायर रिलैक्सेशन प्रोविजंस शैल बी रिन्यूड. सो इनिशियली ये सुविधा दिया जाता है 12 महीने के लिए. 12 महीने के बाद और 12 महीने आपको दिया जाता है टू प्रोड्यूस द ओवीडी. Or after 24 months, all these relaxations are reviewed. That if the bank renders any account ineligible for being classified as small account due to the credits or balance in the accounts exceeding the permissive limit, the bank may allow withdrawals within the limits prescribed in the small accounts जो कि वहाँ पे ब्रीच नहीं किया गया. मान लीजिए किसी एक कस्टमर का एक स्मॉल अकाउंट है जिसमें पूरे साल में मैक्सिमम क्रेडिट कितना होना चाहिए? 1 लाख या फिर उससे कम. मान लीजिए उसका जो क्रेडिट हो गया वो मान लीजिए 1,20,000 हो गया. ओके, ना बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मस्ट नॉट एक्सीड रुपीज़ 50,000. मान लीजिए वो भी हो गया 1,20,000. ना व्हाट बैंक कैन डू एट दैट मोमेंट? मान लीजिए उसका उस महीने का जो विथड्रॉल है वो 2,000 का हुआ है. So मतलब in that parameter he still has rupees 8,000 withdrawal applicability. So bank may allow that person to withdraw that 8,000 rupees. So that is very important for you to remember. Now in case of sole proprietary firm, तो इंडिविजुअल प्रोपाइटर का जो CDD होगा उसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग द उद्यम रजिस्ट्रेशन इशूड बाय गवर्नमेंट लेना पड़ेगा. सर्टिफिकेट ऑफ लाइसेंस or license issued by the municipal authorities under Shops and Establishment Act, Sales Income Tax, CST, VAT, GST, Certificate of Registration issued by Sales Tax, Service Tax और P-Tax, IEC Importer Exporter Code जो कि DGFT के ऑफिस से इशू किया जाता है, और कंप्लीट इनकम टैक्स रिटर्न, नॉट जस्ट द एक्नॉलेजमेंट, यूटिलिटी बिल्स. इनमें से
एनी टू को लिया जा सकता है. तो यू नो व्हाट्स मैंडेटरी एंड व्हाट्स नॉट. यू हैव टू टेक 2 आउट ऑफ दिस 7. अगर किसी ने वो भी नहीं प्रोड्यूस कर पाया तो बैंक कैन ओनली एक्सेप्ट 1 as proof of business or activity and allow that account to operate or to be opened. Now अगर वो एक कंपनी होता है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कंपनी के नाम पे एक पैन, रेजोल्यूशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड पावर ऑफ अटॉर्नी ग्रांटेड टू द मैनेजर्स टू ट्रांजैक्ट ऑन इट्स बिहाफ. द नेम्स ऑफ रेलिवेंट पर्सन्स होल्डिंग सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन एंड रजिस्टर्ड ऑफिस एंड प्रिंसिपल प्लेस. इन सारे चीज़ों का सर्टिफाइड कॉपी लेना ज़रूरी है. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. यू नीड टू रिमेंबर इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड पैन एंड द रेलिवेंट पर्सन एंड रजिस्टर्ड ऑफिस. सो आई मैप RRR ये याद रख लीजिए. याद नहीं रहेगा फिर कंसेप्चुअली इसको ध्यान दीजिए. अगर वो एक पार्टनरशिप फर्म होता है तो वहाँ पे आपको पार्टनरशिप डीड रखना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रखना पड़ता है, पार्टनरशिप फर्म का पैन रखना पड़ता है और बेनिफिशियल ओनर, मैनेजर जो कि ट्रांजैक्शन कर सकते हैं उसके पास अटॉर्नी है वो लेना पड़ता है. नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स, रजिस्टर्ड या फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस हमको लेना चाहिए. और वही अगर ट्रस्ट होता है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रस्ट का एक डीड होता है, पैन नंबर और फॉर्म 60 होता है, जो अटॉर्नी जिसके पास है उसका सारा डिटेल्स, बेनिफिशियरी, ट्रस्टी, सेटलर, प्रोटेक्टर, एनी एंड ऑथर्स ऑफ द ट्रस्ट, ये सब का डेटा रखना पड़ता है. रजिस्टर्ड ऑफिस उसका सारा डेटा रखना पड़ता है. 30. अगर वो अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होगा तो क्या रखना पड़ेगा? रेजोल्यूशन ऑफ द मैनेजिंग बॉडी ऑफ सच एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, पैन नंबर और फॉर्म 60, पावर ऑफ अटॉर्नी ग्रांटेड टू ट्रांजैक्ट ऑन इट्स बिहाफ, डॉक्यूमेंट और जिसके पास अटॉर्नी होता है ट्रांजैक्शन करने के लिए, और लीगल एग्जिस्टेंस उसका है यानी कि कॉर्प डॉक्यूमेंट, ये आपको लेना पड़ेगा. मान लीजिए कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं हुआ है तो उसको आप अनरजिस्टर्ड और अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन की तरह ही देखोगे. द टर्म बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ऑल्सो इंक्लूड सोसाइटीज़. तो सोसाइटीज़ के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? पता ही चल गया. जो रेजोल्यूशन होता है बॉडी ऑफ सच एसोसिएशन वो लेना पड़ेगा, पैन और फॉर्म 60 वो लेना पड़ेगा, पावर ऑफ अटॉर्नी टू ट्रांजैक्ट ऑन इट्स बिहाफ वो लेना पड़ेगा, उसका जो बेनिफिशियल ओनर वगैरह होता है उसका डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, और उसका कोई कॉर्प डॉक्यूमेंट जिसका मतलब जो उसका लीगल एग्जिस्टेंस को वैलिड कर पाएगा वो लेना पड़ेगा. नाउ फॉर ओपनिंग अकाउंट लाइक कस्टमर हु इज़ ए जुडिशियल पर्सन, यानी कि यूनिवर्सिटी, सोसाइटी, लोकल बॉडीज लाइक विलेज पंचायत, जो कि एक जुडिशियल पर्सन और इंडिविजुअल और ट्रस्ट के बिहाफ में काम करता है, उसके लिए क्या लेना पड़ता है? शोइंग द नेम ऑफ द पर्सन ऑथोराइज टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द एंटिटी, डॉक्यूमेंट, सच डॉक्यूमेंट्स में बी रिक्वायर्ड बाय द बैंक टू इस्टेब्लिश द लीगल एग्जिस्टेंस, यानी कि कॉर्प डॉक्यूमेंट्स. सो दैट्स इट. बेनिफिशियल ओनर का आइडेंटिफिकेशन वी हैव डन इट कंप्लीटली. Just remember that in case of company, it's greater than 10% of share profit capital. In case of partnership firm, it is again greater than 10% of capital or profit. In case of say trust, it is greater equal to 10%. In case of any unincorporated association or body of individual, it is greater than 15%. So ये सारे चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा. नाउ ऑनगोइंग ड्यू डिलीजेंस आपको लार्ज या कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग RTGS जहाँ पे अपरेंटली कोई इकोनॉमिक रैशनल या लेजिटिमेट पर्पस नहीं, ये सारे जो चीज़ है ये आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा. यहाँ पे अपडेटिंग और पीरियोडिक अपडेशन बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है. बैंक का 3 टाइप का रिस्क कैटेगरी होता है, लो, मीडियम और हाई.
इन केस ऑफ लो कैटेगरी 10 ईयर्स मतलब 10 साल में एक बार आपका पीरियडिक अपडेशन होना चाहिए। इन केस ऑफ मीडियम 8 ईयर्स मतलब हर 8 साल में एक बार आपका कस्टमर आईडी का अपडेट होना चाहिए। और हाई रिस्क कस्टमर के लिए ये रहेगा 2 साल। सो सिंपली रिमेंबर 8 + 2 = 10। नाउ यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है ड्यूरिंग द अपडेट ऑफ सच केवाईसी, यानी कि जो हमारे हाल ही में डीकेवाईसी प्रोग्राम चल रहा था उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता था कि अगर किसी कस्टमर का कोई केवाईसी इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बैंक शैल ऑब्टेन अ सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम द कस्टमर, और ये रिटर्न में हो सकता है, ये कस्टमर का ईमेल आईडी से भी हो सकता है। और अगर उसमें चेंज इन एड्रेस होता है तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेटा है कि विद इन 2 months ऑफ ऑब्टेनिंग द सेल्फ डिक्लेरेशन बैंक नीड्स टू वेरीफाई द डिक्लेयर्ड एड्रेस विद इन 2 months। सो ये 4 डेटा यहाँ पे आपको याद रखना है। नंबर 1 लो कैटेगरी 10 ईयर्स, मीडियम इट्स 8 ईयर्स, हाई इट्स 2 ईयर्स, and if somebody has a changed address then within 2 months you have to confirm and validate the address. Now bank may obtain this self declaration from the customer if there is no change in the KYC from an authorized BC of the bank. और यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, इज वेरी क्रूशियल, ये बहुत फेवरेट हो सकता है फॉर MCQ, कि the condition stipulated in the update frequency of the KYC ये एप्लीकेबल उस केसेस में नहीं होता है जहाँ पे आधार OTP बेस्ड eKYC इन नॉन फेस टू फेस मोड में लिया गया। इफ देयर इज आधार OTP बेस्ड eKYC नॉन फेस टू फेस मोड में लिया गया तो उस केस में ये फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेट वैलिड नहीं रहता है, और उस केस में पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन लिया जाता है ओनली थ्रू द मोबाइल बेस्ड आधार। ना बैंक को एक चीज़ इंश्योर करना पड़ता है कि वो मोबाइल नंबर वही होगा जो उस कस्टमर का आधार नंबर से जुड़ा हुआ है, दूसरा कोई मोबाइल नंबर उसमें नहीं अलाउ किया जा सकता है। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लीजिए किसी एक डॉक्यूमेंट जब दिया गया था, मान लीजिए लाइसेंस, तो उसका एक वैलिडिटी पीरियड होता है, और जिस टाइम में ये केवाईसी अपडेट हो रहा है उस टाइम में ये लाइसेंस का डेट एक्सपायर हो चुका है। तो उसके लिए बैंक को फ्रेश लाइसेंस लेना पड़ेगा और उस कस्टमर को न्यू कस्टमर की तरह ट्रीट करना चाहिए। यानी कि न्यू कस्टमर के पास से आप जो जो डॉक्यूमेंट्स लोगे ऑफ दैट टाइप, आपको वही डॉक्यूमेंट फ्रेश लेना पड़ेगा विथ नॉन एक्सपायर्ड ड्यू डेट। ओके, ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बैंक के पास पॉलिसी है तो बैंक ये भी कर सकते हैं कि कस्टमर ए जिसका अकाउंट A1 ब्रांच में था, अगर वो शिफ्ट कर गया है और B1 ब्रांच के पास वो रहता है तो उसका कस्टमर आईडी अपडेशन B1 ब्रांच में भी अलाउ किया जा सकता है। पॉइंट 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कि किसी एक डॉक्यूमेंट जो एक कस्टमर ने बैंक को दिया था और वो डॉक्यूमेंट में कुछ अपडेट्स हुआ है ड्यू टू एनी रीज़न, देन द कस्टमर मस्ट इन्फॉर्म द बैंक रिगार्डिंग दैट अपडेट विद इन 30 days ऑफ सच अपडेट। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द ओनस इज़ ऑन द कस्टमर। तो 30 days के अंदर उसको बैंक को देना पड़ेगा वो डेटा और वो अपडेट, ताकि बैंक उसको अपने एंड पे अपडेट कर सके। नाउ दिस इज़ पीरियोडिक अपडेशन, इसका एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेशन है, इम्पॉर्टेंट स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है। मान लीजिए कि ड्यू डेट फॉर KYC इज़ दिस पर्टिकुलर डेट। नाउ इससे पहले उस कस्टमर को आपको एटलीस्ट 3 इंटीमेशन देना पड़ेगा। ओके, और उन 3 इंटीमेशन में से एक थ्रू लेटर होना चाहिए, दैट इज बिफोर द पीरियड, बिफोर द कस्टमर आईडी अपडेट डेट फॉल्स ड्यू। ओके, नाउ आफ्टर द ड्यू डेट इज ओवर, अगेन you need to give 3 intimations
if the customer is not yet communicated to the bank. And out of those three intimation, one must be of through letter. और यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि देर इज नथिंग मेंशन्ड अबाउट द इंटरवल ऑफ सच कम्युनिकेशन. मतलब कितने दिन बाद आप एक लेटर के, कितने दिन बाद आप दूसरे लेटर भेज सकते हो. ऑल इट सेड दैट बिफोर द ड्यू डेट अराइव्स there should be three intimations including one letter communication, and after the due date is over and the customer is not communicating yet, then another three intimations will be given, and one of the intimations should be a letter communication. Now there is another concept, temporarily ceasing operation. In which case it is done? In case of existing customer, bank shall obtain the PAN or Form 60 by such date जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है. और उसके अंदर अगर ये डॉक्यूमेंट बैंक नहीं ले सकते हैं तो उस अकाउंट को टेम्पोररीली उसका ऑपरेशन सीज किया जाता है until the customer submits the PAN or equivalent documents thereof or Form 60. Now before temporarily seizing the operation, बैंक को उस कस्टमर को एक एक्सेसिबल नोटिस देना पड़ेगा और उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा उसके साइड का जो लॉजिक है, स्टोरी है, फैक्ट है, वो सुनने के लिए. लेकिन अगर वो कस्टमर इलनेस या फिर इन्फर्मिटी या फिर ओल्ड एज की वजह से वो नहीं दे पाया तो बैंक कैन अलाउ appropriate relaxation for continue operation in that account. Now temporarily ceasing of operation का मतलब क्या होता है? That means temporarily suspend all transactions or activities in relation to that account by bank till such time जब वो customer compliance देता है. But in case of loan accounts, उसमें तो आप क्लोज नहीं कर सकते हो या फिर कुछ ऑपरेशन नहीं कर सकते हो, बट उसमें फ्रेश डिसबर्समेंट आप नहीं कर सकते हो और ओनली क्रेडिट्स शैल बी अलाउड इन दोज अकाउंट. सो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा. व्हाट इज टेम्पोररीली सीजिंग द ऑपरेशन ऑफ एन अकाउंट एंड इन विच केस बैंक कैन डू इट एंड इन व्हाट प्रिकॉशंस बैंक नीड टू टेक बिफोर डूइंग सच. नाउ देयर इज concept of enhanced due diligence and simplified due diligence procedure. Politically exposed person होता कौन है? They are individuals who are or have been entrusted with prominent public functions by a foreign country, including the heads of the state or government, senior politicians, senior government or judicial or military officers, senior executive, state-owned corporates, important political party officials. So these are politically exposed person. Branches shall maintain a database of the politically exposed person's account in the branch and the due diligence should be done on ongoing basis. Now client accounts opened by professional intermediaries. यहाँ पे आपको एक important चीज़ देखना पड़ेगा कि जहाँ पे एनी क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी है, यानी कि बैंक अगर कोई प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज का अकाउंट खोलना चाहते हैं और वो प्रोफेशनल इंटरमीडियरी उसके क्लाइंट्स के साथ एक एग्रीमेंट करके रखा है कि उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी को नहीं देगा, तो इन दैट केस बैंक विल नॉट ओपन द अकाउंट और गेट इनटू द रिलेशनशिप विद द प्रोफेशनल इंटरमीडियरी. बैंक्स नीड टू नो एवरीथिंग. Now simplified due diligence for the SAGs. Now there was enhanced due diligence for the foreigners, for the foreign accounts, for the politically exposed person and professional intermediaries. And then there is simplified due diligence for self-help groups. Now if it is savings account of SAG, then only the office bearer's KYC is sufficient. But if it is for the credit linking, then CDD of all the members are required. Another important thing that foreign students का अकाउंट खोलने के लिए बैंक को क्या लेना पड़ेगा? 3 very important thing you need to remember. Now to open the bank account, his passport with visa and immigration endorsement
जहाँ पे वो आइडेंटिटी प्रूफ रहता है और होम कंट्री का एड्रेस रहता है और एक फ़ोटोग्राफ रहता है, वो लेना पड़ेगा। तो क्या क्या हुआ, पासपोर्ट हुआ, वीज़ा हुआ और इमिग्रेशन इंडोर्समेंट हुआ। और उसके साथ इंडिया में जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन लेने जा रहे हैं उसका इनिशियल ऑफर लेटर उसके पास रहना चाहिए। सो ऑल दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ इनिशियल अकाउंट ओपनिंग। और अकाउंट ओपन का 30 दिन के अंदर उसको एक लोकल एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा और एक डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा रिगार्डिंग दैट लोकल एड्रेस प्रूफ। ओके, एंड बैंक विल वेरीफाई दैट विद इन 30 days। नाउ व्हाट आर द फिनेंशियल रिस्ट्रिक्शन इन इट? नाउ उसमें फॉरेन, वो तो फॉरेन स्टूडेंट है तो उसका खुद का जो देश है, खुद का जो फैमिलीज है, वहाँ से उसका फंड आएगा। सो दैट शुड नॉट एक्सीड $1000 इनटू दैट अकाउंट ड्यूरिंग दैट 30-day पीरियड। जो ये 30 दिन के अंदर इसका जो लोकल एड्रेस वेरिफिकेशन होगा उसके अंदर $1000 से ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंस नहीं आना चाहिए। और उठाने के टाइम मतलब विथड्रॉल के टाइम देर इज़ ए कैप ऑफ ₹50,000। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि मैक्सिमम फॉरेन रेमिटेंस जो आ सकते हैं, जो क्रेडिट हो सकते हैं उस अकाउंट में, दैट मस्ट नॉट बी बियॉन्ड $1000 एंड मैक्सिमम विथड्रॉल जो अलाउ किया जा सकता है विद इन दैट 30-day पीरियड, it should not be beyond 50,000 rupees. Now, it shall be treated as a normal NRO account and it shall be operated in terms of RBI's non-resident ordinary rupee account, NRO account, and the provisions of the FEMA 1999. Okay, so this is very important. Our bank does not keep any such facility till date until the board approves it. This point is very important. If the student is from Pakistan, then you have to take prior approval from the Reserve Bank of India. Now, in case of foreign portfolio investors, there are certain documents that are mandatory and certain documents those are not mandatory. Now, FPIs comes under 3 category: category 1, category 2, category 3. Category 1 is basically the government or government agencies. Category 2 is anything that is regulated by the government, and category 3 is more loose ends. Individuals might be there, means the regulation is less. So from category 1 to 3 the strictness will be more. So what are the documents we are talking about here? Constitutive documents, यानी कि constitution उसका, तो मेमोरेंडम होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, ये मैंडेटरी है तीनों के लिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस ये भी मैंडेटरी है, सो दिस टू आर मैंडेटरी। पैन ये भी मैंडेटरी है। फिनेंशियल डेटा ये एग्जेम्प्टेड है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। तो फिनेंशियल डेटा फॉर एपीआईज इज नॉट मैंडेटरी। सेबी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। बोर्ड रेजोल्यूशन कैटेगरी 1 जो कि गवर्नमेंट एजेंसी से उसके लिए एग्जेम्प्टेड होता है, लेकिन बाकी सारा जो है उसके लिए मैंडेटरी होता है। कैटेगरी 1 में एग्जेम्प्टेड इसीलिए दिया गया क्योंकि दैट इज solely related to the government and directly in touch with that. प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होता है, ये 1 और 2 के लिए एग्जेम्प्टेड है, लेकिन 3 के लिए लेटर हेड में देना पड़ता है। प्रूफ ऑफ एड्रेस अगेन 1 एंड 2 के लिए एग्जेम्प्टेड है, 3 के लिए देना पड़ता है। फोटोग्राफ्स सारे के लिए एग्जेम्प्टेड है। तो एग्जेम्प्टेड क्या है? एक तो फिनेंशियल डेटा बन गए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू allow them to have transaction with you. Then proof of identity, it is only mandatory for category 3. Proof of address is only mandated for category 3. Now these are the eligible foreign investors. As I have told, what are the categories? Category 1 is government or government related foreign investor. Category 2 regulated जो होता है. Category 3 any other eligible foreign investor in India
जो कि 1 और 2 कैटेगरी में नहीं आता है. Now record management, this is one very important aspect that you need to remember. All necessary transaction record. So transaction record आपको 5 साल तक रखना पड़ता है at least from the date of transaction. Records pertaining to identification of customer and their address. तो लास्ट बिजनेस रिलेशनशिप जो होता है उसके बाद मैक्सिमम 5 साल तक आपको, मैक्सिमम नहीं, एटलीस्ट 5 साल तक आपको रखना पड़ता है. And this is done as per the Rule 3 of the Prevention of Money Laundering Rules of 2005. और ये जो सारे जो डेटा है रिकॉर्ड से, इसमें 4 चीज़ें मेंशन होना इम्पॉर्टेंट है. व्हाट इज द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड द करेंसी इन्वॉल्व्ड, व्हाट इज द डेट of the transaction, and who are the parties to the transaction. So that is very important. The maintenance of record in address and transaction, it may be in hard copy or in soft copy. So 2 important points you need to remember, that you need to keep this for 5 years, and it may be hard copy or it may be soft copy. So that is very, very important for you to remember. Now there is another important thing, that bank shall ensure that in case of customers who are non-profit organization, उसका जो डिटेल्स है बैंक को दर्पण पोर्टल, जो कि नीति आयोग का एक पोर्टल है, उसमें अपलोड करना पड़ता है. दर्पण पोर्टल नीति आयोग का एक पोर्टल है, उसमें अपलोड करना पड़ता है. The bank shall also maintain such registration record for a period of 5 years after the business relationship between the customer and the bank has ended or the account has closed, whichever is later. मान लीजिए अकाउंट क्लोज हुआ है 1 जनवरी को 2026 और बिजनेस रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था 31 दिसंबर 2025, तो आपको 2031 तक, 1 जनवरी तक उस रिकॉर्ड को रखना पड़ेगा. यानी कि विच एवर लेटर, इन दिस केस द लेटर डेट इज 2026, जिस डेट में वो एप्लीकेशन दिया था आपको, आप एक दिन बाद उसका अकाउंट क्लोज किए हो, तो उस केस में फ्रॉम अकाउंट क्लोजर डेट आपको 5 साल मान के चलना पड़ेगा. सो दैट्स इट. रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स टू द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया. Cash transactions integrally connected to each other. Transaction involving received by non-profit organizations. Okay? जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 द्वारा या फिर कंपनीज एक्ट 2013 द्वारा उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है. और कैश ट्रांजैक्शन जहाँ पे फोर्स्ड या फिर काउंटरफिट करेंसी नोट्स का इस्तेमाल हुआ है. तो इन सारे चीज़ के लिए आपको FIU IND को रिपोर्ट करना पड़ेगा. उसका एड्रेस क्या है? 6th फ्लोर होटल सम्राट, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली 110021. जस्ट रिमेंबर इट. नाउ रिगार्डिंग दिस फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर मस्ट नॉट बी अ डिले ऑफ अ सिंगल डे. ओके, इफ इट इज सच देन इट विल कॉन्स्टिट्यूट एज ए सेपरेट वायोलेशन. और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी अकाउंट में बैंक STR फाइल कर दिया, यानी कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, तो बैंक उस अकाउंट में कोई ऑपरेशन रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि अगर उसमें ऑपरेशन रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा तो दैट पर्टिकुलर एंटिटी विल नो दैट इट कम्स अंडर STR. बट STR इज कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और उसको डायरेक्टर को भेजना पड़ता है. नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर. देयर इज इंपॉर्टेंट थिंग, ऑब्लिगेशंस अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज WAPA Act 1967 UAP Unlawful Activities Prevention Act of 1967. और उस लिस्ट में किसी का नाम आएगा तो बैंक उस अकाउंट को अलाउ नहीं करेगा फॉर ऑपरेटिंग.
और एक और लिस्ट है सप्रेशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डर 2007, और उस सारे अकाउंट्स को फ्रीज किया जाता है अंडर सेक्शन 51A ऑफ यूआपा 1967। एंड द लिस्ट ऑफ नोडल ऑफिसर्स वो MHA के साइट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साइट में अवेलेबल है। देन देर इज अनदर ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD 2005 इन केस ऑफ ए मैच इन द अबव केसेस, यानी कि ये लिस्ट में अगर होगा तो बैंक शैल इमीडिएटली इन्फॉर्म द ट्रांजैक्शन डिटेल विथ फुल पर्टिकुलर ऑफ द फंड्स, फिनेंशियल एसेट, इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन्वॉल्व टू द central nodal officer designated an authority to exercise powers under 12A of WMD 2005. तो there was 21A of UAPA जिसके तहत आपको रिपोर्ट करना पड़ता है एक नोडल ऑफिसर को, और यहाँ पे WMD 2005 उस एक्ट में 12A सेक्शन जो है उसके अंदर आपको एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी यानी कि सेंट्रल नोडल ऑफिसर को रिपोर्ट करना पड़ता है, और उसके साथ साथ RBI को भी आपको रिपोर्ट करना होता है। इफ देर इज एन ऑर्डर टू फ्रीज एसेट्स अंडर सेक्शन 12A is received by the bank from the central nodal officer, then bank needs to comply it without delay. There is no such day. You do not need to do any delay in this regard. The process of unfreezing of funds, तो फ्रीज करने के लिए कोई टाइम आपको इलैप्स नहीं करना है, बट टू अनफ्रीज सच फंड्स what you need to do that the applicants need to give an application to the bank, and bank will send it or forward it to the CNO. Now if CNO permits, then the account will be unfrozen, but when the customer or the applicant gives an application to the bank, bank must send to CNO within 2 working days. Now that is very crucial for you to remember because questions come from these things. Okay, so within 2 working days the application should reach to the CNO from the bank. Now secrecy obligation and sharing of information, बैंक जो कस्टमर इन्फॉर्मेशन है वो खाली अकाउंट ओपन करने के लिए यूज़ करेगा और बैंक का खुद का रिक्वायरमेंट में यूज़ करेगा, और कभी क्रॉस सेलिंग के पर्पस में विदाउट एक्सप्रेस परमिशन फ्रॉम द कस्टमर वो किसी को शेयर नहीं करेगा। नाउ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA अकाउंट्स व्हिच आर कैटेगराइज्ड अंडर दिस फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपको लेने के लिए सबसे पहले आपको परमिशन लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। तो इफ देयर इज नो सच प्रायर परमिशन देन बैंक्स विल नॉट अलाउ the FCRA accounts to get funds from the foreign land. Now that is important. There is an important thing regarding the Central KYC Records Registry, the CKYCR. Now Government of India on November 26, 2015, remember 26/11 बहुत sad day है, और 2015 just remember this day. The government India on that date authorized the Central Registry of Securitization Asset Reconstruction and Security Interest of India, SERSI, उसको दिया गया है to act as and to perform the function of CKYCR. Now if a bank gets a customer data, it needs to upload that within 10 days of commencement of an account based relationship with customer. So 10 days. तो इससे पहले एक डे के बारे में हम लोग पढ़े थे, वो था 2 डेज। कस्टमर ने एक एप्लीकेशन किया अनफ्रीज करने के लिए अंडर WMD, और उसको CNO के पास भेजने के लिए बैंक के पास 2 दिन का वक्त रहता है, और फ्रीज करने के लिए कोई डिले नहीं होना चाहिए, तुरंत उसको फ्रीज कर देना चाहिए whenever the order is there. Now one other important thing, like the security interest part, the RE, the regulated entity that has last uploaded or updated customers KYC record in CKYCR shall be responsible to verify the identity. Okay, it will be the responsibility of that particular bank who has uploaded the latest data. And there is an important REs shall referred to the spot reference rates published by the FEDI,
What does it stand for? Foreign Exchange Dealers Association of India, FEDIRATE, fedi.org.in. Okay, presenting period for presenting payment instrument, चेक, डीडी, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक, इसका वैलिडिटी होता है 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट. Collection of account pay check, very important. Account pay checks for any person other than the payee constituent shall not be collected. Very important. Bank should collect account pay checks drawn for an amount not exceeding rupees 50,000 to the account of their customers who are cooperative credit societies. Not exceeding 50,000 rupees. So 50,000 से अगर कम अमाउंट का अकाउंट पे चेक है फॉर एनी क्रेडिट cooperative societies, then bank can collect that check. But beyond that, bank cannot. Now, issue and payment of demand draft. Any remittance of funds by way of demand draft, mail, telegraphic, NEFT, IMPS or any other issue and traveler's check for value of rupees 50,000 and above shall be effected by debit to the customer's account और अगेंस्ट चेक्स एंड नॉट अगेंस्ट कैश पेमेंट. अगर वो अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो वो कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करके ही आपको करना पड़ेगा. इन नो अदर वे इट कैन बी डन एंड इट शुड बी विद इन द 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट. नाउ 15 September 2018 देयर वॉज अनदर डेट 26 November 2015. जिस डेट से क्या हुआ था, जिस डेट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेडसाई को अथॉरिटी दिया था टू मेंटेन एंड एक्ट अपॉन द सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री. और यहाँ पे 15 September 2018 इसमें क्या हुआ था, उस डेट के बाद जो डिमांड ड्राफ्ट इशू होगा उसमें जिसने ये डिमांड ड्राफ्ट ऑर्डर किया है उसका नाम उसके ऊपर प्रिंट होना चाहिए. थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, जब आप थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो यू शुड वेरीफाई द आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ एनी वॉक इन कस्टमर जहाँ पे ये ट्रांजैक्शन 50,000 रुपीज से ज़्यादा हो रहा है. इफ ब्रांचेस और ऑफिसेस फाइंड एनी ट्रांजैक्शन और अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन इज सस्पिशियस देन द सेम शैल बी रिपोर्टेड टू द रीजनल ऑफिस इमीडिएटली फॉर फर्दर एग्जामिनेशन एंड रिपोर्टिंग. नाउ यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लिखा गया है. दिस इज़ वैलिड अंटिल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26-27 एंड इट विल बी रिव्यूड ऑन एनुअल बेसिस. बट ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, तो अप्रूवल पद क्या था, ORMC, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट कमिटी और उसके बाद बोर्ड. तो ORMC उसके पास जो पावर है, अगर मान लीजिए कि इन द इंटरिम पीरियड देयर इज ए चेंज इन एनी रेगुलेटरी एस्पेक्ट, देन दिस ORMC कैन चेंज द नेसेसरी modifications, necessary things in this review before it is due for the next review. Any deletion, modification or deletion of committee in this policy due to introduction or change in any other policy. मान लीजिए बोर्ड ने एक और ए बोल के कोई पॉलिसी अप्रूव कर दिया जिसके हिसाब से यहाँ पे मेंशन किया गया किसी कमिटी नल एंड वॉइड हो जाता है, तो ORMC के पास है वो जो रेक्टिफिकेशन या मॉडिफिकेशन इस पॉलिसी में वो कर सकते हैं. नाउ एट द एंड ऑफ दैट 1 year there can be a period of 3 months for which this policy may be extended. So that's it for the KYC policy and AML policy. And again I am requesting that please do not share this with anybody. This is not for that purpose. This is only for your study, your preparation. That's all I am taking care into. So thank you, and I will be again posting some other policy which may come good for your exam. Thank you.